عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بھائیو، سورۃ البقرہ کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس کی نازل کردہ کتاب کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہ آخری صحیفہ ہدایت ہے جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا قرآن سے تعلق رکھنا اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کی مانند ہے۔ قرآن سے تعلق قائم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کی مانند ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں سب سے بہتر معلم قرآن کے معلم کو قرار دیا اور سب سے بہتر متعلم قرآن کے متعلم کو قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہوں، قرآن سکھاتے ہوں۔ دنیا میں کتنے علوم نہیں ہیں اور ہر علم کے کتنے معلم نہیں ہیں اور ہر علم کے کتنے متعلم نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشرف العلوم قرآن کا علم ہے، اور اشرف المعلمین قرآن کے معلمین ہیں، اور اشرف المتعلمین سیکھنے والوں میں سب سے بہتر طلباء اور سب سے بہتر سیکھنے والے قرآن مجید کے سیکھنے والے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک لفظ اور جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر اجر عظیم کی نوید سنائی گئی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اللہ کے پاس ملیں گی، اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے کم از کم 30 نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ جو کل قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گی، اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گی۔ مسلم شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں قرآن مجید پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ حشر کے میدان میں جن کے حق میں قرآن سفارش کرے، قرآن مجید کی کوئی سورت سفارش کرے۔ اور کیا شک ہو سکتا ہے قرآن مجید کی سفارش کے قبول ہونے میں، اور کون شک کر سکتا ہے قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی سفارش کے قبول ہونے میں؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के कारी को जो बेहतर अंदाज में कुरान पढ़ता हो, महारत के साथ कुरान मजीद तिलावत किया करता हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ऐसे कारी को फरिश्तों की कुर्बत, फरिश्तों की माइयत और फरिश्तों की रिकाबत की बशारत सुनाई है कि ऐसे लोग फरिश्तों के साथ होंगे कल क़ियामत के रोज। आपने फरमाया अल-माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बररा, बुखारी शरीफ की रिवायत है। फरमाते हैं जो शख्स पूरी महारत के साथ कुरानी मजीद पढ़ता हो, महारत का मतलब कवाइद तजवीद के लिहाज के साथ, हुरूफ के मखारिज के एतबार के साथ, अच्छी आवाज में, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ता हो, फरमाया मअस सफरतिल किरामिल बररा, ये शख्स कुरान का ऐसा कारी उन फरिश्तों के साथ होगा जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गी वाले हैं, बड़े नेक हैं, और उन फरिश्तों के साथ होगा जो अल्लाह और उसके पैगंबरों के दरमियान सिफारत का काम अंजाम देते रहे। कल क़ियामत के रोज कुरान मजीद के कारी से कहा जाएगा, कल उससे कहा जाएगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया। उससे कहा जाएगा देखो ये जन्नत है, देखो ये जन्नत के मरातिब हैं, देखो ये जन्नत के दर्जात हैं, अब तुम्हारा दर्जा वहां है कि पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। दुनिया में जिस अंदाज में तुम तिलावत किया करते थे, आज भी तिलावत करते जाओ। जहां तुम्हारी तिलावत खत्म होगी, जन्नत में तुम्हारा मुकाम भी वो होगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी सआदतमंदी की बात है, कितने बड़े एजाज की बात है। और याद रखना, इस एजाज और इन जैसी अहादीस के बारे में उमूमन ये समझा जाता है कि ये सिर्फ हाफिज कुरान के बारे में है जो कि बिन देखे पढ़ता है। नहीं नहीं, वो लोग जो कुरान के हाफिज नहीं हैं लेकिन कुरान मजीद देख कर पढ़ते हैं, और देख कर पढ़ना दुनिया में उनकी आदत रही, ये एजाज और ये शरफ उन लोगों के लिए भी है। कल क़ियामत के रोज वो भी दुनिया में जिस तरह पढ़ते थे, कल अल्लाह ताला ने वो सलाहियत देगा कि वो भी जो है पढ़ते जाएंगे और चढ़ते जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को अच्छी से अच्छी आवाज में और अच्छे से अच्छे अंदाज में पढ़ने की तलकीन की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक रात सहाबी रसूल अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु के मकान पर से हुआ। रात का वक्त था। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु अपने घर में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। बड़ी प्यारी आवाज थी, पढ़ने का अंदाज बड़ा प्यारा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रुक गए, उनकी तिलावत को सुनते रहे, और जब उनकी तिलावत खत्म हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ गए। दूसरे दिन सुबह जब अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई तो आपने उनकी तारीफ करते हुए फरमाया कि अबू मूसा, कल रात मैंने तुम्हारी तिलावत सुनी, और फरमाया लक़द ऊतीत मिज़मारम मिन मज़ामीर आली दाऊद। ऐ अबू मूसा, तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है कि गोया दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरों में से एक सुर तुम्हें दे दी गई है, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज का एक हिस्सा तुम्हें दे दिया गया है। दाऊद अलैहिस्सलाम भी ज़बूर पढ़ते थे तो इतनी प्यारी आवाज होती, इतना प्यारा अंदाज होता कि पहाड़ भी और परिंदे भी रतबुल लिसान हो जाया करते थे उनके साथ साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात बताई, अबू मूसा तुम्हारी आवाज बड़ी प्यारी है, गोया के दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरों में से एक सुर तुम्हें दे दी गई है। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु इतना खुश हुए, फरमाया ऐ अल्लाह के नबी, अगर मुझे मालूम होता कि कल रात आप मेरी क़िरात और तिलावत सुन रहे थे, अगर मुझे मालूम हो जाता तो लहब्बरतुहु लक तहबीरा, और अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश करता। अल्लाहु अकबर, गौर कीजिए। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी तिलावत सुनी। इशा की नमाज थी, आपने इशा की नमाज में सूरह 3 की तिलावत की। फरमाते हैं इतना प्यारा अंदाज और इतनी प्यारी आवाज, फरमाते हैं जिंदगी में इतनी प्यारी आवाज मैंने किसी की नहीं सुनी जितनी प्यारी आवाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मैंने सुनी तिलावत करते हुए। तो मालूम हुआ कोशिश करनी चाहिए कुरानी मजीद में महारत हासिल करने की, अच्छे से अच्छे अंदाज में और अच्छी से अच्छी आवाज में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में पूछा गया कि अल्लाह के नबी सबसे अच्छी तिलावत किसकी है, सबसे अच्छी क़िराअत किसकी है? आपने फरमाया सबसे अच्छी तिलावत उसकी है कि जिसकी तिलावत सुनो तो उसकी तिलावत का अंदाज तुम्हें यूं लगे कि जैसे वो अल्लाह से डर रहा है। उसकी तिलावत का अंदाज बताए, उसकी क़िराअत बताए कि अल्लाह से डर रहा है और पढ़ते हुए आयात के मानी और मफाहिम को समझकर आयात के और मानी और मफाहिम के हिसाब से उसका असर अपने दिल पे ले रहा है और दिल पे असर कबूल करके पढ़ रहा है। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए इस बात का भी खास एहतमाम होना चाहिए कि वो मखसूस आयतें और वो मखसूस सूरतें जिनकी बड़ी फजीलत बताई गई है उनका खास एहतमाम जिंदगी में होना चाहिए। ये बहुत सी आयतें हैं और ये बहुत सी सूरतें हैं। इनमें सरफहरिस्त कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा बड़ी फजीलतों वाली सूरत है। ये उम्मुल किताब है, ये कुरान मजीद का निचोड़ है। पूरा कुरान उसी की तफसीर है, उसी की तफसील है, उन्हीं बातों की तफसील है जो बातें की सूरतुल फातिहा के अंदर मज़कूर हैं। इसीलिए उसको उम्मुल किताब कहा जाता है। ये बड़ी फजीलतों वाली सूरत है। हदीस आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबे जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा थे। जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा थे कि अचानक आसमान से एक जोरदार आवाज आई। जिब्रील अमीन ने आसमान की जानिब देखा और कहा कि मोहम्मद, ये जो अभी आवाज हमने सुनी है, हादा बाबुम मिनस समा फुतिहल यौम वलम युफ्तह क़ब्ल, कहा कि ये आसमान के एक दरवाजे के खुलने की आवाज है। कहा कि मोहम्मद, जब से अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है ये दरवाजा कभी नहीं खोला गया था, आज पहली मर्तबे ये दरवाजा खोला गया है। फिर जिब्रील अमीन ने कहा, ओ देखो मोहम्मद, इस दरवाजे से एक फरिश्ता उतर रहा है, और कहा ये वो फरिश्ता है कि जब से अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है रोए जमीन पे पहली मर्तबे आ रहा है। वो फरिश्ता आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर उसने कहा, अबशिर बिनूराइन ऊतीतहुमा लम युतहुमा नबियुन क़ब्लक, कहा कि मोहम्मद, मैं आपको दो ऐसे नूरों की बशारत देने के लिए आया हूं। दो ऐसे नूर जो अल्लाह ने सिर्फ आपको दिए हैं और आपसे पहले किसी रसूल, किसी पैगंबर को नहीं दिए गए हैं। आप इन दो नूरों की बशारत कबूल कीजिए। कहा ये दो नूर क्या है? कहा सूरतुल फातिहा व खवातीम सूरतुल बकरा। पहला नूर सूरह फातिहा है और दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं। भाइयों, गौर करो, ये कितनी अजीम सूरत है कि जिसकी बशारत सुनाने के लिए आसमान का एक ऐसा दरवाजा खोला गया जो कभी नहीं खोला गया था, और एक ऐसे फरिश्ते का इंतखाब हुआ जो फरिश्ता पहली मर्तबे रोए जमीन पे आया था। तो सूरह फातिहा बड़ी फजीलतों वाली सूरत है। और इसी तरह से सूरह बकरा की जो आखिरी दो आयतें जिनकी फजीलत इसमें बयान की गई, आमनुर रसूल से काफिरीन तक, बड़ी फजीलतों वाली आयतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जो शख्स भी शाम के वक्त सोते हुए इन दो आयतों को पढ़ ले, आपने फरमाया कि कफता, ये दोनों आयतें उस शख्स के लिए उस रात में जो भी शर है, हर किस्म के शर से बचाने के लिए काफी हैं ये दोनों आयतें। इसी तरह सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, इनकी भी बड़ी फजीलत आई है। इनका भी खास एहतमाम होना चाहिए। आपने फरमाया ये दोनों सूरतें कल क़ियामत के रोज साहिबानों की मानिंद आएंगी और अपने पढ़ने वालों को उस दिन साया देंगी जिस दिन कोई साया ना होगा। और एक और रिवायत में आपने फरमाया सूरह बकरा और सूरह आले इमरान अपने पढ़ने वालों के हक में अल्लाह ताला के पास सिफारिश करेंगी, अल्लाह ताला के पास हुज्जत कायम करेंगी, कहेंगी परवरदिगारा, ये वो बंदा है जो हमारी तिलावत किया करता था, हमें पढ़ा करता था, परवरदिगारा इन्हें बख्श दे, इन्हें माफ कर दे। खुशनसीब है वो लोग जिनके हक में कुरान की ये सूरतें सिफारिशी बनकर आए। आपने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत हो, एक हदीस में आपने फरमाया 3 दिन भी जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत हो उस घर में शैतान पनाह नहीं ले सकता। सूरह बकरा का खास एहतमाम होना चाहिए। उसैद बिन हुदैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, साहबी रसूल, एक रात
तहज्जुद पढ़ रहे थे, तहज्जुद में सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। उनका घोड़ा पीछे बंधा हुआ था और घोड़े के करीब उनका नन्हा सा बच्चा यहया सोया हुआ था। उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह अन्हु तिलावत कर रहे थे कि अचानक आसमान अचानक उनका घोड़ा बिदकने लगा। अचानक उनका घोड़ा बिदकने लगा। उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह अन्हु डर गए कि कहीं वो घोड़ा उनके नन्हे मासूम यहया को ना रौंद डाले। उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह अन्हु ने जल्दी से अपनी तिलावत खत्म की, जल्दी से अपनी नमाज खत्म की और फौरन आके देखा कि घोड़ा क्यों बिदक रहा है। तो देखा आसमान से नूर का एक साहिबान उतरा हुआ है, आसमान से नूर का एक साहिबान उतरा हुआ है। ये मंजर देखा उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह अन्हु ने और सुबह होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले गए और जो कुछ देखा था वो अर्ज किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसैद जानते हो ये नूर का साहिबान जो आसमान से उतरा था वो क्या है? फरमाया तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिक, ये फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज को सुनने के लिए आए थे, तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए आए थे। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिक, ये फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज को सुनने के लिए आए थे। मालूम हुआ अच्छी आवाज में कुरान मजीद को पढ़ना फरिश्तों की कुर्बत का जरिया होता है। और इस हदीस से यह भी मालूम होता है रात के वक्त जब सारी मखलूक सोई रहती है, रात के वक्त की तिलावत की खुसूसी फजीलत है। रात के वक्त तिलावत करने से फरिश्तों का खास तकर्रुब हासिल होता है। और आदमी तजुर्बा करके देख ले कि रात की तिलावत से दिल को कैसी तक़वियत मिलती है, दिल को कैसी राहत मिलती है, दिल को कैसा इत्मीनान मिलता है। और बिल्कुल ऐसी ही बात और ऐसा ही वाकया एक दूसरी रिवायत में सूरह कहफ के बारे में भी आया है कि सूरह कहफ की तिलावत पे भी आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए थे। सूरह कहफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत का हुक्म दिया है, सूरह कहफ की तिलावत की पाबंदी का हुक्म दिया है कि जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत होनी चाहिए। उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पढ़ने वाले को नूर बसीरत मिलता है, पढ़ने वाले को नूर बसीरत मिलता है, उसके गुनाह माफ होते हैं। और खुसूसन सूरह कहफ की इब्तिदाई जो 10 आयतें हैं उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल का फितना अल्लाह अकबर बहुत अजीम फितना, बहुत बड़ा फितना, इतना अजीम फितना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझसे पहले इस दुनिया में जितने पैगंबर गुजरे हैं हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। इतना अजीम फितना और उससे बचने की इतनी आसान राह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि सूरह कहफ की 10 आयतें इंसान याद कर ले और उन इब्तिदाई 10 आयतें और उनको पढ़ता रहे, उनका विर्द करता रहे। इन्हीं फजीलतों वाली सूरत में एक सूरतुल मुल्क भी है। सूरतुल मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 30 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुन फिल कुरान 30 आया शफाअत लिरजुलिन हत्ता गुफिर लह। आपने फरमाया कुरान मजीद की एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं। इस सूरत ने एक शख्स के हक में अल्लाह के पास सिफारिश की और यह आयत अल्लाह से लड़ती रही, सिफारिश करती रही, यहां तक कि उस शख्स की बख्शिश हो गई, उस एक सूरत की सिफारिश पर बख्शिश हो गई, यानी यही सूरतुल मुल्क। आपने फरमाया ये वो सूरत है कि जो अपने पढ़ने वाले को अजाब कब्र से बचाती है। अजाब कब्र जिसको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान कांप उठता है उसके तस्वुर से। आपने फरमाया सूरतुल मुल्क ये वो सूरत है हियल मानिया हियल मुंजिया। आपने फरमाया यह अजाब कब्र से बचाने वाली सूरत है, यह अजाब कब्र से नजात दिलाने वाली सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शाम सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल मुल्क पढ़कर सोया करते थे। जिन्हें याद है वो ऐसे ही पढ़कर सोया करें, जिन्हें याद नहीं वो कुरान मजीद देख कर सही सूरतुल मुल्क पढ़कर सोया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हुए बहुत सारे अज़कार, बहुत सारी सूरतों का एहतमाम करते। कभी आप सूरतुल मुल्क पढ़ते, कभी आप सूरह बनी इसराइल सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही ये सूरत पढ़ा करते, कभी आप सूरतुस सजदा पढ़ा करते जो फजर जुमा के दिन फजर की नमाज की पहली रकात में उमूमन पढ़ी जाती है, और कभी आप सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरत ज़ुमर पढ़ा करते थे। हमें सोने से पहले इन सूरतों का एहतमाम करना चाहिए। इन्हीं फजीलतों वाली सूरतों में एक सूरत सूरतुल इखलास भी है। सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद बड़ी फजीलतों वाली सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा तादिलु सुलुसल कुरान, इन्नहा तादिलु सुलुसल कुरान। आपने फरमाया कि सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद एक तिहाई कुरान पढ़ने की मानिंद है, एक तिहाई कुरान के बराबर है। जो सूरतुल इखलास को एक मर्तबे पढ़ता है तो गोया उसने जो है 10 पारे तिलावत की है। 10 पारों की तिलावत करने से जितना सवाब इंसान पाता है उतना सवाब वो सूरतुल इखलास की तिलावत पे पाता है। सुलुसे कुरान सूरह इखलास एक तिहाई कुरान के बराबर होने का मतलब क्या है? अहले इल्म ने कहा कि मक्की सूरतों में खुसूसियत के साथ 3 मज़ामीन को खास तौर पे अल्लाह ताला ने जिक्र किया, तौहीद, रिसालत और आखिरत। मक्के में जो भी सूरतें नाजिल हुई हैं, मक्की सूरतों के मज़ामीन को देख लीजिए आप। हर मक्की सूरत में ये 3 सूरतें 3 मज़ामीन नुमाया हैं। एक तौहीद, अल्लाह की तौहीद, और दूसरा रिसालत, अंबिया और रसूल की रिसालत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हक्कानियत की बात, और तीसरा ईमान बिल आखिरह। चूंकि सूरतुल इखलास ये तौहीद का जामे तारुफ है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई थी जब मुशरिकीन मक्का ने सवाल किया था, ऐ मोहम्मद बताओ कि तुम्हारे रब का हसब क्या है, तुम्हारे रब का नसब क्या है, तुम्हारे रब का हसब व नसब बताओ। नौजुबिल्लाह उसका बेटा वो किसका बेटा है, उसकी औलाद कौन है, नौजुबिल्लाह वो बताओ। उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि वो अकेला है, वो बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और ना ही दुनिया में उसके बराबर की कोई और ताकत है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक सहाबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक सरिये में अमीर बना के भेजा था। इन सहाबी का मामूल था कि ये सहाबी जब भी नमाज पढ़ाते थे, नमाज की हर रकात का इख्तिताम कुल हुवल्लाहु अहद से करते थे। सूरतुल फातिहा के साथ दूसरी सूरतें पढ़ने के बाद इख्तिताम कुल हुवल्लाहु अहद से करते थे। आने के बाद जब ये सरिया, ये काफिला वापस लौटा, उनके साथियों ने शिकायत की अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी से शिकायत की, कहा अल्लाह के नबी नमाज की हर रकात में सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा क्यों करते रहे? उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी मैं नमाज की हर रकात में इसलिए पढ़ता रहा कि इस सूरत से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। आपने फरमाया हुब्बुका इय्याहा अदखलकल जन्नह, आपने फरमाया कि हुब्बुका इय्याहा अदखलकल जन्नह, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत का हकदार बना दिया, तुम्हें जन्नत मिल गई इस सूरत से मोहब्बत करने की वजह से। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम सूरत है। इसीलिए आज भी मुसलमान अपने बच्चों को सबसे पहले, जब बच्चे बोलना सीखते हैं, सबसे पहले जो सूरत सिखाते हैं वो उमूमन यही सूरत होती है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान मजीद की वो आयतें जिनकी खास फजीलत हदीसों में आई है, उनमें से एक आयत आयतुल कुर्सी भी है। आयतुल कुर्सी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी का खुसूसियत के साथ जिक्र है। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए, उसकी कुर्सी की वुसाअतें जमीन और आसमानों को समाये हुए है। ये आयतुल कुर्सी, उबय बिन काब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ऐ उबय बिन काब, जानते हो कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज्यादा अजीम है? कुरान मजीद की अजमत के एतबार से कौन सी आयत सबसे ज्यादा अहम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से इस तरह जो सवालात किया करते थे, कभी कभी आपके सवाल करने का मकसद सामे को मुतवज्जे करना होता, जवाब आप खुद देना चाहते थे मगर सामे को मुतवज्जे करने के लिए पूछते थे। मगर कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते कि सामने वाला जवाब दे,
اور यहां आपके सवाल का मकसद यह था कि उबई बिन काब जवाब दें, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज्यादा अजीम है? उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं समझता हूं कि कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत ये आयतुल कुर्सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पे को थपकते हुए कहा, सीने पे मारते हुए कहा, लियहनिकल इल्म अबुल मुंजिर, कहा कि अबुल मुंजिर तुम्हें किताब इलाही का खुसूसी इल्म मुबारक हो, किताब इलाही का खुसूसी इल्म मुबारक हो। उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु की कुनियत थी अबुल मुंजिर, और ये कुरान मजीद के हुफ्फाज में से थे, हुफ्फाज सहाबा में से थे, और कुरान मजीद का खुसूसी इल्म था इन्हें, मुफस्सिरीन सहाबा में से थे ये। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का सही जवाब दिया। कुरान मजीद की हजारों आयतों में से उन्होंने सही इंतखाब किया। आपके पूछने पर कहा कि कुरान मजीद की फजीलत के एतबार से सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। आपने उनके शाबाशी देते हुए सीने पे थपकते हुए कहा, इल्म मुबारक हो, किताब इलाही का खुसूस इल्म तुम्हें मुबारक हो। आयतुल कुर्सी ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला का इस्म आज़म अल हय्य अल क़य्यूम है, वो इस्म आज़म के जिसके बारे में फरमाया गया कि जिसके वास्ते और वसीले से मांगी जाने वाली हर दुआ कबूल होती है। और आयतुल कुर्सी ये वो आयत है जो शैतान के लिए, शैतान की ज़ुर्रियत के लिए ये कोड़े से कम नहीं। आपने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मशहूर वाक़िया सुना है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़कात के माल, रमज़ान में जो सदक़तुल फ़ित्र का माल इकट्ठा हुआ था उसकी हिफाजत पे मामूर किया था, एक शख्स आया एक इंसानी शक्ल में और आकर उसमें से चुराने लगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको पकड़ लिया, पकड़ लिए तो उसने माज़रत चाही, माफ़ी मांगी कि आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा, छोड़ दो। अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। अबू हुरैरा जब छोड़ दिए, दूसरे दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, आपने पूछा, अबू हुरैरा रात क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा, अल्लाह के नबी, एक चोर आकर सदक़े फित्र के माल में से चुराने लगा, मैंने जब उसे पकड़ लिया, उसने माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया, छोड़ दिया। आपने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ, आज भी आएगा वो। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु गए और जैसे आपने फरमाया दूसरी रात भी वो शख्स आया, आकर छुड़ाने लगा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने पकड़ लिया, कहा आज नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने बीवी बच्चों का हवाला दिया, कहा अबू हुरैरा जरा रहम करो, मेरी बीवी बच्चों की सूरत देख के मुझे छोड़ दो। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को फिर उसकी हालत ज़ार पर रहम आ गया, फिर छोड़ दिया। साहबा कितने रहमदिल होते थे, कितने रहमदिल होते थे। दूसरे दिन भी जब उसने अपने बच्चों का हवाला दिया, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने उसे माफ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, आपने पूछा, अबू हुरैरा क्या हुआ? कहा, अल्लाह के नबी, आपके फरमान के मुताबिक वो आया था, लेकिन उसने अपने बच्चों का हवाला दिया, वास्ता दिया, तो मैंने उसे माफ कर दिया, छोड़ दिया। कहा, अबू हुरैरा आज भी आएगा वो, आज भी आएगा वो। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हसब साबिक़ इंतजार करते रहे, आया, चुराने लगा और पकड़ लिया। कहा कि आज मैं तुझे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। तब उसने देखा कि छुटकारे की कोई राह नहीं। कहा, अबू हुरैरा छोड़ दो, मैं तुम्हें एक आयत बताता हूं, एक नुस्खा बताता हूं, इस नुस्खे का एहतमाम करोगे शैतान तुम्हारे करीब भटक कर भी नहीं देखेगा, इस नुस्खे के बताने के बदले में मुझे छोड़ दो। अबू हुरैरा ने कहा, बताओ। कहा कि अबू हुरैरा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, जब भी बिस्तर पे जाओ सोने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। अबू हुरैरा ने इस नुस्खे के बदले उसे फिर छोड़ दिया। आपकी खिदमत में पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा माजरा अर्ज किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा जानते हो ये कौन था? कहा, ये शैतान है जो 3 दिन से तुम्हारे पास चुराने के लिए आ रहा है। गौर करो, खुद शैतान ने इकरार किया, खुद शैतान ने इकरार किया कि अबू हुरैरा आयतुल कुर्सी पढ़ लो, आयतुल कुर्सी का एहतमाम कर लो, शैतान तुम्हारे करीब किसी सूरत नहीं आ सकता। तो लिहाजा भाइयों, इतनी अजीम आयत है ये। आयतों के एतबार से सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है और सूरतों के एतबार से सबसे अजीम सूरत सूरतुल फातिहा है। इसी तरह कुरान मजीद की वो मखसूस सूरतें जिनकी फजीलत आई है, इन्हीं में से मुअव्विज़तैन भी हैं, यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये वो 2 सूरतें हैं कि इस दुनिया में जितने किस्म के शर हैं, इंसानों का शर,
जिन्नात का शर, हासिदीन का शर, जादू का शर, ये दो ऐसी सूरतें हैं कि हर किस्म के शर से इंसान की हिफाजत कर लेती हैं। हर किस्म के शर से इंसान को ये दो सूरतें बचा लेती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा पढ़ा करते थे, हमेशा पढ़ा करते थे सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये तीन सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शाम सोने से पहले 3 मरतबे पढ़ा करते थे। 3 मरतबे पढ़ा करते और हर मरतबे अपनी हथेलियों में फूंक मार के अपने सारे बदन पे जहां तक हाथ जाए ऊपर से नीचे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल लिया करते थे। और इसके अलावा नमाजों के बाद भी, हर नमाज के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करते थे। और सुबह शाम के अज़कार में 3 मरतबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीनों सूरतें पढ़ा करते थे, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इसलिए भाइयों, ये जो सूरतें हैं खास सूरतें हैं और ये जो आयतें हैं मखसूस आयतें। कुरान मजीद, पूरा कुरान हमें पढ़ना चाहिए, कुरान मजीद की हर सूरत को हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो मखसूस सूरतें जिनकी फजीलत सही अहादीस से साबित है, इन सूरतों का खास एहतमाम होना चाहिए। तिलावत करते हुए इन सूरतों को खुसूसी अहमियत के साथ हमें और आपको तिलावत करना चाहिए। बड़ी बरकतें इनकी हासिल होंगी और बड़ा जो सवाब इनका हासिल होगा और हमारी जिंदगी पर इन सूरतों की तिलावत का बड़ा गहरा असर होगा। अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल होगा, फरिश्तों का तकर्रुब हासिल होगा। कहना यह है कि कुरान मजीद से ताल्लुक, ये अल्लाह ताला से ताल्लुक, कुरान मजीद से कुर्बत अल्लाह तबारक व तआला से कुर्बत की मानिंद है। कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से जुड़ जाएं, खुद कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। वो बुजुर्ग जो बड़े हो गए और उनके वालिदैन की गलती की वजह से या खुद उनकी अपनी गफलत की वजह से जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, आखिरी उम्र में क्यों ना हो कुरान सीखने की कोशिश करें। हमारे सामने ऐसे नमूने हैं कि ऐसे बुजुर्ग जो 70 साल के 75 साल की उम्र को पहुंच चुके, उस उम्र में पहुंचकर उन्होंने कुरान मजीद सीखा और सीखने के बाद उसको समझने की भी कोशिश की और उसमें कामयाब रहे। और अगर कोई इस कदर मजबूर है कि कुरान सीख नहीं सकता है, कुरान पढ़ना उसके बस में नहीं है, कम से कम इतना जरूर करे। आज अच्छे अच्छे कुर्रा अइम्मा हरमैन की तिलावतें कैसेटों की शक्ल में और सीडीज की शक्ल में हर जगह दस्तयाब है। ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद सुना करें। हमारे घरों से हमेशा कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। हमारी गाड़ियों में, हमारी कारों में, सफर में, हजर में, हर जगह हमारे पास कुरान होना चाहिए। अगर कोई कुरान पढ़ नहीं सकता है, कम से कम कुरान मजीद सुना करे। कुरान मजीद को पढ़ना जिस तरह अजीम इबादत है, कुरान मजीद का सुनना भी अजीम इबादत है। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि परवरदिगार कहने वाले को और सुनने वालों को अपने उन बंदों में से बनाए जिनका कुरान मजीद से खास ताल्लुक और कल्बी शगफ जिन्हें कुरान मजीद से होता है। अल्लाह करे आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।